So in this class we will discuss about the abdominal aorta and the inferior vena cava. In the thorax you have read about the descending thoracic aorta. So this abdominal aorta, it is a continuation of descending thoracic aorta. Descending thoracic aorta आपने abdomen thorax में पढ़ा था, है ना? आर्च ऑफ aorta से descending thoracic aorta और जहाँ at the aortic orifice of diaphragm, this descending thoracic aorta ends and abdominal aorta starts, which is at the level of T12 vertebrae. ठीक, T12 vertebrae के level पे after coming out from the aortic opening of diaphragm, it will continue as an abdominal aorta and supply all the viscera, all the gut के जितने भी derivatives हैं, as well as lower limb, all are supplied by the branches of abdominal aorta. ठीक है, abdominal aorta की सारी branches diaphragm के below जितने भी structure सबको supply कर रही है. ठीक है. Then after emerging from the aortic orifice of the diaphragm, which is at the level of which vertebrae? T12 vertebrae, it will passes downward in front of vertebral column and slightly to the left of medial line. ठीक है ना? जनरल आइडिया होना चाहिए कि इंफीरियर वेना कावा जो है वो राइट साइड में है और एब्डोमिनल ऑर्टा जो है लेफ्ट साइड में है. ठीक है, तो इस इन दिस इमेज आप देख रहे हो, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, है ना, जो कि वेना कावल ओपनिंग ऑफ डायफ्राम से बाहर निकलता है, सॉरी ऊपर आप असेंड करेगा, दैट इज एट द लेवल ऑफ T8, है ना. एंड ये क्या है? एब्डोमिनल ऑर्टा. यहाँ इसके ऊपर डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा, यहाँ से एब्डोमिनल ऑर्टा स्टार्ट हो रहा है, विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द ऑर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम, विच इज एट द लेवल ऑफ T12. और सबको पता है इसोफिजियल ओपनिंग किस लेवल पे है? T10 पे है. 8, 10 एंड 12. ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 8, 10 पे इसोफिजियल ओपनिंग होगी और 12 पे एब्डोमिनल ऑर्टा होगा. तो आफ्टर emerging from the aortic opening of the diaphragm, it descends vertical downward in front of the vertebral column and slightly to the left of the midline. And at the level of L4 vertebrae, it will divide into two terminal branch, that is right and left common iliac artery. ठीक है, these are the two terminal branches है, that is the right and the left common iliac artery. और ये किधर होता है? इससे slightly left side में होता है in relation to the inferior vena cava. And by dividing into right and left common iliac artery, which is slightly to the left of the median plane, right side में inferior vena cava है. The length of the abdominal aorta is 10 to 11 centimeter and its breadth is 2 centimeter. अगर रिलेशन में देखो कि इंफीरियर वेना कावा का जो लेंथ होता है जस्ट डबल टू द एब्डोमिनल ऑर्टा. ठीक है, तो इंफीरियर वेना कावा का लेंथ देखोगे, इट इज जस्ट डबल ऑफ एब्डोमिनल ऑर्टा, दैट इज 20 to 23 सेंटीमीटर. और द लेंथ ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्टा इज 10 to 11 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर. नाउ द रिलेशन of abdominal aorta. Abdominal aorta has lot of branches. Some of its branches arises from front, few from behind, and there are two terminal branches. A part of it बहुत सारी lateral branches भी निकलती है abdominal aorta की. So in this is the sagittal section. This is abdominal aorta. तो sagittal section है ये. These all structure are present anteriorly. So the anterior relation from above downward. So anteriorly इसकी मैंने क्या बताया कि आप कुछ ब्रांचेस एंटीरियरली निकल रही हैं, फ्यू ब्रांचेस आर अराइजिंग लेटरली एंड फ्यू पोस्टीरियरली, और बाकी टर्मिनल्स है. तो एंटीरियरली तो ब्रांच निकलती है, आपने ये पढ़ा, जीआईटी का डेवलपमेंट हो गया आपका, है ना, पढ़ा ना, मिड गट, फोरगट, मिड गट एंड हाइंड. ठीक है, दे ऑल द डेरिवेटिव ऑफ फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट आर सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल ऑर्टा. इसकी 3 ब्रांचेस से आपने पढ़ा होगा, सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक, है ना, पढ़ा है ना.
फोरगट सीलियक आर्टरी को सीलियक आर्टरी से सप्लाई होता है, जितना भी फोरगट का डेरिवेटिव होगा, मिड गट का सुपीरियर मेसेंट्रिक से, और हाइंड गट का इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से। तो एंटीरियरली आपको तो एक एंटीरियर रिलेशन में क्या दिखेगा, एंटीरियरली आपको तीनों आर्टरी की इमर्जेंस मिलेगी, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल ऑर्टा स्टार्ट किस लेवल पे हुआ, T12 लेवल पे स्टार्ट हुआ। जो सीलियक ट्रंक होती है, जो सीलियक आर्टरी है, वो अराइज करती है एट द लेवल T12 और L1 के इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लेवल पे, ठीक है। सुपीरियर मेसेंट्रिक जो होती है वो L1 के लेवल पे होती है, और इंफीरियर मेसेंट्रिक जो होती है वो L3 के लेवल पे होती है, और L4 पे ये आर्टरी एंड कर जाती है, ठीक है। तो आपको लेवल पता होना चाहिए कि सुपीरियर मेसेंट्रिक T12 और L1 के जंक्शन से, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन T12 एंड L1, superior mesenteric at the level of L1, inferior mesenteric at the level of L3, or artery end at the level of L4. So these are the structures which are present anteriorly. Celiac artery और superior mesenteric के बीच में anteriorly आपको celiac ganglia और celiac plexus मिलेंगी. Apart from it, anteriorly body of pancreas and splenic vein. Between superior mesenteric and inferior mesenteric, you will get uncinate process of pancreas, third part of duodenum, that is the horizontal part of duodenum, third part left renal vein, and below the inferior mesenteric you will get the coils of mesentery, root of mesentery भी मिलेगा और उसको पेरिटोनियम से सेपरेट करता हुआ। So these are all the structures which are present anteriorly, from above downward, celiac ganglia, body of pancreas, splenic vein, left renal vein, uncinate process of pancreas, third part of duodenum, coils of small intestine. So these are the relation present anteriorly. Posteriorly क्या मिलेगा, posteriorly you will get vertebrae मिलेगी, T12 पे था तो कौन सी vertebrae मिलेगी, from L1 to L4, है ना, सारी upper four lumbar vertebrae और इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम इट आपने पढ़ा है कि वर्टिब्री को कौन कनेक्ट करता है एंटीरियरली, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, पढ़ा है ना, बॉडी के आगे और पीछे क्या होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। तो एंटीरियरली इन फ्रंट ऑफ द बॉडीज ऑफ ऑल लंबर वर्टिब्री यू विल गेट एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एज वेल एज थर्ड एंड फोर्थ लंबर वेन, ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट पोस्टीरियरली, दैट इज द अपर फोर लंबर वर्टिब्री विथ इंटरवेइंग इंटरवर्टिब्रल डिस्क, anterior longitudinal ligament, and third and fourth lumbar vein. Now the relation present on the right side. Right side में मैंने आपको बताया अभी क्या होता है, right side में inferior vena cava होता है ना। तो on the right side you will get the inferior vena cava, whereas on the left side you will get the left celiac ganglia, और जो पूरी celiac sympathetic trunk है left side की वो आपको मिलेगी। तो left side पे आपको left sympathetic चेन मिल गया और राइट साइड में आपको इंफीरियर वेना कावा। तो दीज आर द रिलेशन प्रेजेंट ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड। नाउ द ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्टा। फर्स्ट अबाउट द वेंट्रल ब्रांचेस, यू विल गेट 3 वेंट्रल ब्रांचेस, सीलियक, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, देन डॉर्सल, ठीक है। डॉर्सल मतलब पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली आपको क्या मिलेगी, 4 lumbar arteries, right and left upper fourth, that is first lumbar, second, third and fourth. All these 4 lumbar arteries arise from the posterior aspect of abdominal aorta. So upper 4 lumbar arteries both on right and left side posterior aspect से निकलेगी, और as well as median sacral artery. Median sacral artery just L4 लेवल पे abdominal aorta खत्म हो रहा है, उससे just above मिड लाइन में एक सिंगल आर्टरी निकलती है विच विल डिसेंड डाउनवर्ड इन द मीडियन प्लेन, दैट इज नोन एज मीडियन सैक्रल आर्टरी। अब आगे उसके बारे में आगे बताऊंगी। तो पोस्टीरियरली कितनी आर्टरी निकल गई, 4 तो लंबर आर्टरी हो गई राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड में, एंड 1 मीडियन सैक्रल आर्टरी जो कि मिड लाइन में है, ठीक है। 3 आगे हो गई और बाकी 5 आपकी पोस्टीरियरली हो गई। नाउ द लेटरल ब्रांच। लेटरल ब्रांच सबसे पहले ऊपर में इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी निकलेगी फर्स्ट, then middle suprarenal artery, then renal artery, and then the gonadal. Gonadal male में testicular and female में ovarian artery. Okay, so laterally you will get 4 paired arteries from above downwards. सबसे ऊपर inferior phrenic artery, then
मिडल सुप्रारीनल, सुप्रारीनल भी 3 है, जब सुप्रारीनल ग्लैंड पढ़ोगे सुपीरियर, सुप्रारीनल, मिडल एंड इंफीरियर, अभी आगे बताऊंगी कौन किसकी ब्रांच है। इससे डायरेक्टली एब्डोमिनल ऑर्टा से अराइज करती है ओनली द मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, जस्ट बिलो मिडल सुप्रारीनल, दोनों साइड लेटरली निकलेगी रीनल आर्टरी, बिलो रीनल आर्टरी gonadal artery, that is in male testicular and in female ovarian artery. So these are the lateral branches. And now the terminal branches. Terminal branches क्या होगी? Right and left common iliac artery जो कि further divide होगी external and internal iliac artery. ठीक है, तो these are all the branches of abdominal aorta. तो in the image आप देख सकते हो, सबसे पहले वेंट्रल ब्रांचेस जो एंटीरियरली निकलती है, सीलियक, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक, यहाँ भी देख सकते हो, दिस इज सीलियक ट्रंक, दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक, दिस इज इंफीरियर मेसेंट्रिक, ये सारी क्या हुई? वेंट्रल ब्रांचेस हुई। डॉर्सल ब्रांचेस, इस इमेज में आपको 3 ही लंबर आर्टरी दिखाई है, या एक्चुअली 4 लंबर आर्टरीज है, राइट एंड लेफ्ट 4 लंबर आर्टरीज, 1 2 3 और एक और होती है, फर्स्ट अपर 4 वर्टिब्रल के करस्पॉन्डिंग 4 लंबर आर्टरी निकलती है। देन डॉर्सल एस्पेक्ट से एक ये निकलेगी जो मिड लाइन में है, किसको क्या कहते हैं? मीडियन सैक्रल आर्टरी। तो दीज आर ऑल द डॉर्सल ब्रांचेस। फिर लेटरल ब्रांचेस में सबसे ऊपर इंफीरियर फ्रेनिक, देन मिडल सुप्रारीनल, देन रीनल आर्टरी, और ये जो थिन सी सिलेंडर सी दिख रही है जो कि डाउनवर्ड लेटरली जा रही है, दैट इज द गोनाडल, टेस्टिकुलर और द ओवेरियन। अपार्ट फ्रॉम इट द 2 टर्मिनल ब्रांच, दैट इज द राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी विच फर्दर डिवाइडेड इनटू द एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक। सबको पता है एक्सटर्नल इलियक इंगुइनल लिगामेंट के नीचे जा करके क्या बना देता है? फेमोरल आर्टरी बनाता है और वो लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है। और इंटरनल इलियक जो होगी वो पूरी की पूरी पेरिनियम को सप्लाई करेगी, इट विल सप्लाई द पेरिनियम। अब नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द आर्टरीज। फर्स्ट, सबसे पहली कौन सी ब्रांच है? वेंट्रल ब्रांचेस, दैट इज द सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक इज अ शॉर्ट अप्रॉक्स, इसका कहते हैं 1.25 सेंटीमीटर लेंथ होता है, शॉर्ट वाइड वेसल है। इट इज अ शॉर्ट वाइड वेसल विच अराइजेस एट द लेवल बिटवीन T12 और L1 के इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लेवल पे अराइज करती है। इट विल पासेस फॉरवर्ड एंड स्लाइटली टू द राइट, ठीक है, थोड़ा सा एक पोर्ट है, एंड देन फाइनली इट विल डिवाइडेड इनटू इट्स 3 ब्रांचेस, दैट इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी एंड द स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, आपने भी थोड़ा डियोडनम पढ़ा होगा, स्टमक पढ़ा होगा, तो वहां पे पढ़ा होगा इनके आर्टरीज के नाम। तो द फर्स्ट ब्रांच इज द सीलियक आर्टरी विच अराइजेस फ्रॉम द वेंट्रल एस्पेक्ट। इट इज अ शॉर्ट वाइड वेसल अप्रॉक्स 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ. It will passes forward and slightly to the right, and then it will divided into its 3 branches. That is, image में आपको दिख रहा होगा, this is the left gastric artery, this is the common hepatic artery, and this is the splenic artery. These are the 3 branches of celiac trunk. First, left gastric artery. जो left gastric artery होती है, that is the smallest branch of the celiac trunk. ठीक है, celiac trunk की सबसे जो छोटी ब्रांच है वो कौन सी है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि आपने स्टमक के रिलेशन में भी पढ़ा होगा. तो आप दिस इज द सीलियक ट्रंक. आफ्टर इमर्जेंस इट विल पासेस अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट. ठीक है, अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट जाएगी, ये रन करेगी अप टू द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक. कहां तक रन करेगी? अप टू द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक, एंड देन इट रन फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड. ठीक है, पहले तो आफ्टर इमर्जेंस अपवर्ड और लेफ्ट की तरफ गई, उसके बाद टर्न हो जाएगी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड and run along the lesser curvature of stomach. सबको दिख रहा है, this is the lesser curvature of stomach. इसके run around run करती है and. ठीक है, और end करेगी by anastomosing with the right gastric artery which is a branch of hepatic artery. अभी मैंने बताया ना कि सीलियक ट्रंक की जो सेकेंड ब्रांच है वो कौन है? कॉमन हेपाटिक आर्टरी. कॉमन हेपाटिक की ब्रांच है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, उसके साथ एनास्टमोस करके लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी along the lesser curvature end कर जाती है. ठीक है, तो दिस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज द स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, इट विल गिव 2 टाइप ऑफ ब्रांचेस. एक तो एसोफेजियल ब्रांच देती है, वो ऊपर में दिख रही है, दिस इज द एसोफेजियल ब्रांच विच इज एट द एसोफेजियल एंड ऑफ द स्टमक, वहां पे देती है. और बाकी पूरे कर्वेचर के अलोंग न्यूमरस गैस्ट्रिक ब्रांचेस देती है to supply the stomach. So this is all about the left gastric artery which is the smallest branch of the celiac trunk. First it passes upward and to the left and then downward and forward and runs along the lesser curvature. It gives
फर्स्ट कहाँ तक रन करती है, अप टू द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक। तो वहां पे एक ब्रांच देती है सुपीरियर ब्रांच, और पूरे लेसर कर्वेचर के अराउंड न्यूमरस गैस्ट्रिक ब्रांच देती है टू सप्लाई द स्टमक एंड एंड बाय एनास्टोमोसिस विद द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी। नाउ द नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज द second branch of celiac trunk, that is the common hepatic artery which is larger than left gastric। ठीक है, सबसे छोटी लेफ्ट गैस्ट्रिक थी, उससे बड़ी क्या है आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी है। तो दिस आर्टरी इज कॉमन हेपेटिक आर्टरी, इट विल पासेस डाउनवर्ड एंड टू द राइट। दिख रहा है सबको इमेज में कैसे रन कर रही है, नीचे की तरफ और राइट में, और राइट मूव करके कहाँ तक जाएगी, अप टू द फर्स्ट सुपीरियर सरफेस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूरनम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूरनम, है ना, फिर ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा। तो अप टू द सुपीरियर पार्ट ऑफ द ड्यूरनम इट इज, और फिर उसके बाद क्या होगा, देन इट विल रन अपवर्ड। कहाँ रन करेगी, अपवर्ड। आपने वो पढ़ा है स्टमक में पढ़ा होगा, तो एपिप्लोइक फोरामेन पढ़ा होगा, फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम पढ़ा होगा। तो देन इट विल रन अपवर्ड ऑन द इन द फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम। ठीक है, अब फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम के ऊपर रन करती है पोर्टा हेपेटिस, लिवर के पीछे, सबको पता है। At the porta hepatis, this artery divides into branches. तो बस याद रखना है कि जहां से ये अपवर्ड मूव करती है एंड रन करती है इन रिलेशन विद द फ्री मार्जिन ऑफ लेसर, देन दिस आर्टरी नोन एज हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर। ठीक है, इसी कॉमन हेपेटिक आर्टरी को अब क्या हम बोलेंगे, जब ये लेसर ओमेंटम में रन करेगी हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, और जब ये पोर्टा हेपेटिस में जाएगी तो दो टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, जिसको क्या बोलोगे, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, दिस राइट हेपेटिक आर्टरी गिव अ ब्रांच दैट इज नोन एज सिस्टिक आर्टरी विच सप्लाई द गॉल ब्लैडर। जब गॉल ब्लैडर पढ़ोगे तब यह आएगा सिस्टिक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी। बाकी जो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी है वो लिवर का आप पढ़ोगे जब, तो लिवर हैज गॉट टू फिजियोलॉजिकल लोब, एक राइट लोब होता है, एक लिवर में लेफ्ट लोब होता है। तो दिस राइट एंड लेफ्ट लोब आर सप्लाइड बाय द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, so this is the second branch of celiac trunk. So from here till it runs upward in the lesser free margin, this is known as common hepatic artery. When it runs in the free margin of lesser omentum, then it is known as hepatic artery proper till the porta hepatis. और porta hepatis में जाके डिवाइड हो जाएगी राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, जो कि दोनों लोब ऑफ लिवर को सप्लाई करती है। राइट एक ब्रांच दे देती है सिस्टिक आर्टरी विच विल सप्लाई द गॉल ब्लैडर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट इट ऑल्सो गिव ब्रांचेस। जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, यहाँ के बाद तो ये हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर हो गई, जब तक ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी थी इट विल गिव फर्स्ट ब्रांच दैट इज कॉल्ड द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, जो कि लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, रन करेगी अलोंग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड एंड, और ये भी बहुत सारी गैस्ट्रिक ब्रांच देगी टू सप्लाई द स्टमक एंड एंड बाय एनास्टोमोसिस विद द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अपार्ट फ्रॉम इट विल गिव अनदर ब्रांच दैट इज नोन एज गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। दिस गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी अराइजेस एट द सुपीरियर, कहाँ किस लेवल, कहाँ पे, जहाँ पे वो सुपीरियर सरफेस ऑफ द ड्यूडेनम के रिलेशन में थी, वहाँ पे आपकी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी निकलेगी। इन देन इट रन्स बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जस्ट बिलो द इंफीरियर सरफेस ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे इंफीरियर पार्ट आएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम का, इट विल divided into its two branches. One is known as right gastroepiploic and superior pancreaticoduodenal artery. ठीक है, जहां से वो हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर शुरू हुई थी उससे जस्ट पहले ही इट विल गिव टू ब्रांचेस। सबसे पहला तो आपको राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होगी जो कि स्टमक को सप्लाई करती है, लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग रन करती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करके एंड हो जाती है। दूसरी ब्रांच गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है which will arise on the upper part of the first part of the duodenum. Then it runs behind the first part of the duodenum. At the lower part of first part of the duodenum, it will divide it into two branches. One is known as right gastroepiploic artery, which will run along the greater curvature of the stomach. और ये एनास्टोमोस किसके साथ करेगी, स्टमक में पड़ा होगा, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, और दूसरी हो गई सुपीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी। अब ये सुपीरियर, कल मैम ने आपको पढ़ाया होगा, सुपीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल, जो पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनम के बीच में ग्रूव होता है, पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल ग्रूव, उससे आगे की तरफ से रन करती है। ठीक है, और ये भी फाइनली जाकर के असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच में होगी, और ये सारी एनास्टोमोस करेगी विद द
ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, वो आगे बताऊंगी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के साथ। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन हेपेटिक आर्टरी। आफ्टर कॉमन हेपेटिक आर्टरी, another artery that is known as the splenic artery, which is the largest branch of the celiac trunk. This splenic artery, it will, after its origin, it will passes upward and to the left की side run करेगी over the body and the tail of the pancreas. ये दिख रहा है pancreas, pancreas के body और tail के ऊपर run करती है। then यहाँ पे relation में आती है suprarenal gland के और kidney के anterior surface से। और फाइनली एक लिगामेंट होता है, पढ़ा होगा, पेरिटोनियम पढ़ लिया तो आपने पढ़ा होगा, लीनोरीनल लिगामेंट। लीनोरीनल लिगामेंट किसके बीच में होता है? स्प्लीन और किडनी के बीच में। तो देन इट विल रन इन द लीनोरीनल लिगामेंट और फाइनली हाइलम ऑफ स्प्लीन में जाकर के न्यूमरस ब्रांचेस में, कहते हैं 5 to 7 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको सेगमेंटल ब्रांचेस कहते हैं। और फाइनली इट विल सप्लाई द स्प्लीन। तो दिस स्प्लीनिक आर्टरी, इट विल रन अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट over the body and tail of pancreas. यहाँ पे it will come in relation with the suprarenal gland and anterior surface of right kidney. Finally, it goes inside the lienorenal ligament and gets over the hilum of the skin, where it divides into various segmental branches to supply the spleen. Apart from और क्या क्या branches ये देता है, ठीक है? It will give dorsal pancreatic artery, great pancreatic artery and caudal pancreatic artery to supply the pancreas. Pancreas के head को छोड़ करके सारे के सारे को यही सप्लाई करती है, ठीक है? स्प्लेनिक आर्टरी। तो फर्स्ट ब्रांच सबसे पहले क्या दी? dorsal pancreatic artery, ठीक है? देन पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए ग्रेट पैंक्रियाटिक आर्टरी और टेल के पास caudal pancreatic artery, ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि जो जितनी आर्टरीज दी है, डॉर्सल, ग्रेट और कॉडल पैंक्रियाटिक आर्टरी, इन सब के बीच में अनास्टोमोसिस बन जाता है और उस आर्टरी को कहते हैं इंफीरियर पैंक्रियाटिक आर्टरी, ठीक है? कॉडल और जो ये इधर वाली आर्टरीज है, दैट इज द डॉर्सल और ग्रेट, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर करके क्या बना देती है? इंफीरियर पैंक्रियाटिक आर्टरी बना देती है। तो इट विल सप्लाई द होल पैंक्रियाज। अपार्ट फ्रॉम इट, ऊपर की तरफ फ्रॉम इट्स पार्ट, छोटी छोटी 3 to 5 इन नंबर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देती है। पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आपने? स्टमक के फंडस को सप्लाई करती है, ठीक है? तो यहीं पे स्टमक है ना, तो इट विल अराइजेस फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी 3 to 5 इन नंबर एंड सप्लाइज द फंडस ऑफ द स्टमक। अपार्ट फ्रॉम इट, बिलो नीचे से लेफ्ट गैस्ट्रोएपिफ्लोइक आर्टरी देती है, जो कि आपको इस इमेज में भी दिखा था। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिफ्लोइक आर्टरी which will run along the greater curvature of the stomach, supplies the stomach and end by anastomosing with the right gastroepiploic artery, which is a branch of common hepatic artery. This is all about the celiac trunk. Then the second, ये superior mesenteric और inferior mesenteric कल पढ़ाया होगा आपको, जब duodenum, jejunum और ileum पढ़ाया होगा, क्योंकि ये सारी की सारी किसको ही सप्लाई कर रही है? गट को ही सप्लाई कर रही है ज्यादातर, है ना? ये कौन सी किस गट की आर्टरी है? हाइंड गट की, है ना? और ड्यूडेनम से क्या स्टार्ट, मिड गट की, और ड्यूडेनम से क्या हो गया? पूरा ही आपका मिड गट ही स्टार्ट हो गया। तो इट विल सप्लाई, दिस इज द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी अराइजेज एट द लेवल ऑफ सीलियक ट्रंक से 1 सेंटीमीटर बिलो अराइज करते हैं एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रे, ठीक है? आफ्टर इट्स ओरिजिन इट विल रन डाउनवर्ड एंड राइट की साइड में मूव करती है। आप ये, दिस इज द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, आफ्टर इट्स ओरिजिन इट विल रन डाउनवर्ड एंड टू द राइट अप टू द राइट इलियक फोसा। कहाँ तक आती है? सबको पता है, क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन, है ना? 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन, यू ऑल नो। कहाँ से आ रहे हो? गो आउटसाइड, क्लोज द गेट। So it will run downward and to the right and terminate at the level of right iliac fossa. सबको पता है ना, साइड में, राइट साइड में लो, सबसे लोअर क्वाड्रेंट जो है, दैट इज अ राइट इलियक फोसा। उस राइट इलियक फोसा पे आकर के ये एंड करती है, ठीक है? तो दिस सुपीरियर mesenteric artery gives numerous branches. All the branches arises from its right side except the jejunal or the ileal branches, जो कि कल पढ़ाया होगा अपने मैम ने। वो कहाँ से अराइज करती है? लेफ्ट साइड से, ठीक है? लेफ्ट साइड से कहते हैं कि 13 to 15 जेजुनल और इलियल ब्रांचेस ये करती है, जो कि आर्केड बनाती है, पढ़ाया होगा ना?
लास्ट में स्ट्रेट बन जाती है वासा रेक्टा, आर्केड्स बनता है, तो वो इसी से बनता है, ठीक है। तो ऑन द लेफ्ट साइड न्यूमरस जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस अराइजेस, वेयर ऑन द राइट साइड सबसे ऊपर इंफीरियर पैनक्रियाटिक, अभी पढ़ाया था मैंने सुपीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी, हाँ किसकी ब्रांच है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है ना। पहली राइट गैस्ट्रिक थी, दूसरी सुपीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी। मैंने क्या बताया था, सुपीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी भी डिवाइड कर जाएगी, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर ब्रांच, और ये भी क्या होगी, जो इंफीरियर पैनक्रियाटिक विच इज द फर्स्ट ब्रांच ऑन द राइट साइड ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये भी डिवाइड कर जाएगी एक एंटीरियर ब्रांच और एक पोस्टीरियर ब्रांच में। और दोनों जो ड्यूओडेनम और पैनक्रिया के बीच में ग्रूव होगा, जिसको क्या कहते हैं ड्यूओडेनो पैनक्रियाटिक ग्रूव, उसमें रन करती है और दोनों साइड की एंटीरियर आके अनास्टोमोस करेगी और दोनों की पीछे साइड में दोनों की पोस्टीरियर अनास्टोमोस करेगी और एंड करेगी और उसको सप्लाई करेगी। समझ में आ गया? तो दिस फर्स्ट दैट इज द इंफीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूओडेनल आर्टरी। द सेकंड ब्रांच ऑन द राइट साइड इज मिडल कोलिक आर्टरी, ठीक है। मिडल कोलिक आर्टरी क्या होती है, इट विल अराइजेस फ्रॉम द राइट साइड एंड डिवाइडेड इनटू अ राइट ब्रांच एंड अ लेफ्ट ब्रांच, ठीक है। कैसे में डिवाइड हो जाती है, राइट ब्रांच या लेफ्ट ब्रांच। तो इसकी लेफ्ट ब्रांच होती है ना, वो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के साथ अनास्टोमोस कर जाती है, ठीक है। किसके साथ, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच के साथ अनास्टोमोस कर जाती है। अब क्या होता है, ये मिडल कोलिक है, राइट कोलिक है और इलियो कोलिक है, ये तीनों, ये बाकी जो नीचे की राइट कोलिक और इलियो कोलिक ये सारी आती है और डिवाइड कर जाती है एक असेंडिंग ब्रांच, एक डिसेंडिंग ब्रांच, एक असेंडिंग ब्रांच और एक डिसेंडिंग ब्रांच। मिडल कोलिक की जो लेफ्ट ब्रांच थी वो मैंने क्या बताया आपको, इंफीरियर मेसेंट्रिक के साथ अनास्टोमोस कर जाएगी। जो राइट वाली है वो राइट कोलिक की असेंडिंग के साथ अनास्टोमोस करेगी, जो राइट कोलिक की डिसेंडिंग है वो इलियक कोलिक के असेंडिंग के साथ अनास्टोमोस करेगी, और जो इलियक कोलिक का डिसेंडिंग है वो खुद की जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का टर्मिनल पोर्शन है उसके साथ अनास्टोमोस करेगी, ठीक है। एक पूरा अनास्टोमोटिक चैनल बना रही है। इंफीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूओडेनल तो वो सुपीरियर के साथ अनास्टोमोस करके एंड कर देगी। मिडल कोलिक लेफ्ट ब्रांच राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के साथ अनास्टोमोस, राइट वाली राइट कोलिक की असेंडिंग के साथ अनास्टोमोस की, डिसेंडिंग वाली इलियोकोलिक के असेंडिंग के साथ अनास्टोमोस की। इलियोकोलिक का डिसेंडिंग जो आपकी जो टर्मिनल पोर्शन है सुपीरियर मेसेंट्रिक एट द राइट इलियक कोलिक, वहां पे अनास्टोमोस करके है ना। तो दिस होल सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एक तो जेजुनम और इलियम को सप्लाई करेगी, उसके अलावा कोलोन को सप्लाई करती है, राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, सीकम, अपेंडिक्स, ठीक है, और टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम, इसको सप्लाई करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सप्लाई ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। सॉरी, नाउ द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये हाइंडगेट की आर्टरी है एंड आफ्टर इट्स ओरिजिन एट द लेवल ऑफ L3 वर्टिब्री इट विल रन डाउनवर्ड एंड टू द राइट साइड, ठीक है। ये डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट साइड एंड इट विल गिव ब्रांचेस, कौन सी देगी, लेफ्ट कोलिक, ठीक है। एक तो लेफ्ट कोलिक देगी, दूसरी आपकी सिग्मोइडल आर्टरी देगी, क्योंकि इसका नाम इसलिए दिया है, ये पूरा का पूरा सिग्मोइड कोलोन को सप्लाई करेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट विल कंटिन्यू बिलो एज जब ये जब जाएगी ना, ये नीचे क्या बन रही थी, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, जैसे ही ये कॉमन इलियक आर्टरी को क्रॉस करती है ना, तो दिस इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इज नाउ कॉल्ड एज सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। मतलब सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बिलो दी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी वो किस चीज में कंटिन्यू हो जाएगी, एज अ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। मानो इसको यहाँ और बढ़ाओगे तो ऐसे आएगी ना, राइट लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, तो उसके नीचे ही उसको अब इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ना बोल के क्या बोलोगे, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी को, जो कि किसको सप्लाई करेगी, रेक्टम को सप्लाई करेगी। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे 2 to 3 सिग्मोइडल आर्टरी देती है, जो कि सिग्मोइड कोलोन को सप्लाई करती है। और क्या देती है, लेफ्ट कोलिक ब्रांच देती है, ठीक है, विच विल सप्लाई द डिस्टल थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, इस साइड सुपीरियर मेसेंट्रिक से सप्लाई की, इस साइड इंफीरियर मेसेंट्रिक से, एज वेल एज पूरी की पूरी डिसेंडिंग कोलोन को भी कौन सप्लाई करेगा, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। Now the lumbar artery are 4 in number, first, second, third, fourth, है ना। फिफ्थ लंबर आर्टरी इससे नहीं आती है, उसका डिफरेंट अलग अलग है, कभी वो मीडियन सैक्रल से आ जाती है, बट ये 5 होती है, बट एब्डोमिनल ऑर्टा से सिर्फ 4 ही आती है। अपर फोर लंबर आर्टरी विच अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल एस्पेक्ट, ठीक है। और ये क्या करती है, लेटरली रन करती है ओवर द लंबर वर्टिब्री
डीप टू द श्वास मेजर, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में पढ़ोगे एक मसल होती है श्वास मेजर, जो कि लोअर एब्डोमिनल में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। श्वास मेजर के डीप में रन करती है और एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करके एंड कर जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लंबर आर्टरी। देन मीडियन सैक्रल आर्टरी। मीडियन सैक्रल आर्टरी सिंगल आर्टरी है, ये भी कहां से राइज करती है, डॉर्सल एस्पेक्ट से करती है, जस्ट अबव द बाइफर्केशन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्टा, ये डिसेंड करती है डाउनवर्ड, ठीक है। मिड लाइन में रन करेगी, डाउनवर्ड करेगी, डाउनवर्ड रन करेगी तो कहाँ, पेल्विक कैविटी में एंटर कर जाती है, और जो बॉडी ऑफ कॉकिक्स होता है ना, कॉकिक्स वर्टिब्री की जो बॉडी होती है उसके फ्रंट में एंड कर जाती है, वेस्टिजियल कहते हैं, बोलते कुछ सप्लाई नहीं करती है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ कॉकिक्स वर्टिब्री के पास ये एंड कर जाती है, मिड लाइन में रन करती है। तो दिस इज अबाउट द मीडियन सैक्रल आर्टरी। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, नाम से पता चल रहा है, डायफ्राम। फर्स्ट ब्रांच होती है जो अराइज करती है लेटरल एस्पेक्ट से एट द लेवल ऑफ T12, जैसे ही अपने उसी लेवल पे T12 के लेवल पे रन करती है अपवर्ड एंड लेटरली रेमिफाई करती है ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम एंड सप्लाई द डायफ्राम एज वेल एज सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड को कैसे सप्लाई करेगी, जो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है दैट विल गिव अ ब्रांच नोन एज सुपीरियर सुप्रारीनल। मैंने बताया ना सुप्रारीनल की 3 ब्रांच है, सुप्रारीनल मतलब 3 आर्टरी होती है, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। मिडल वाली तो डायरेक्ट एब्डोमिनल ऑर्टा की है, जो सुपीरियर वाली है वो कहां से आ रही है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से आ रही है, और जो इंफीरियर वाली है वो रीनल आर्टरी से आती है, ठीक है। तो दिस इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी इट विल सप्लाई द डायफ्राम एज वेल एज सुप्रारीनल ग्लैंड। It will, after its origin at the level of T12, it runs upward and laterally ramify on the inferior surface of the diaphragm and give a branch that is the superior suprarenal artery, which supply the suprarenal gland and it supply the diaphragm. Now the suprarenal artery, ये सीलियर ट्रंक जहां से अराइज करता है ना, उसके जस्ट बिलो लेटरली 2 मिडल सुप्रारीनल आर्टरी अराइज करती है एंड इट विल सप्लाई द सुप्रारीनल ग्लैंड। दिस इज किडनी, दिस इज सुप्रारीनल ग्लैंड। तो जो सुपीरियर वाली है वो इंफीरियर फ्रेनिक से आई, मिडल वाली डायरेक्ट ऑर्टा से आई, और इंफीरियर वाला रीनल आर्टरी से आएगा, और तीनों के तीनों किसको सप्लाई करेगा, सुप्रारीनल ग्लैंड को। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रेट रन करती है और सप्लाई करती है किसको, सुप्रारीनल ग्लैंड को। नाउ द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कैसी है, इट इज अ शॉर्ट वाइड वेसल, ठीक है ना, छोटी है बट थिक वाइड सी है, ठीक है ना। वाइड वेसल्स है, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट वाली, जो लेफ्ट वाली होती है ना थोड़ी सी हायर होती है एज कम्पेयर टू राइट वन, ठीक है, और लेफ्ट जो राइट वाली होती है वो लॉन्गर होती है, लॉन्गर है और नीचे लेवल पे है, लेफ्ट वाली शॉर्टर है और अबव लेवल पे है, और दोनों स्ट्रेट रन करती है और जाकर के हाइलम ऑफ द किडनी में एंटर करेगी और किडनी को सप्लाई करेगी। बाकी आपको डिटेल और कैसे डिवाइड होती है वो आपको किडनी में पढ़ाया जाएगा। नाउ the two gonadal vessels, that is the testicular artery and the ovarian artery, ठीक है। टेस्टिकुलर आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी दोनों जो है ना वो लॉन्ग सिलेंडर आर्टरी है, ठीक है ना, पतली सी है और लंबी सी है। लॉन्ग सिलेंडर आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्टा, देन रन डाउनवर्ड एंड लेटरली, ठीक है। और मेल में क्या होता है, जो टेस्टिकुलर आर्टरी होती है वो डीप इंगुइनल रिंग, यूरिनल कैनाल पढ़ा ना, डाउनवर्ड और लेटरली एंड करती, रन करती है। इट विल एंटर द deep inguinal ring, runs through the inguinal canal, comes outside through the superficial inguinal ring, पढ़ा है ना। superficial inguinal ring से आती है और किसको सप्लाई करती है, टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को सप्लाई करेगी, ठीक है। बाकी डिटेल और आर्टरीज की आपको तो जब करस्पॉन्डिंग पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ओवेरियन आर्टरी सेम है, ठीक है ना, वो भी डाउनवर्ड और लेटरली रन करती है, पेल्विक कैविटी में आ जाती है, और एक लिगामेंट होता है ओवरी का जिसको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है। ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है और यहाँ ओवरी है। ये पहले सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी में रन करती है, देन पासेस बिहाइंड द फेलोपियन ट्यूब, देन यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसको कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। उस ब्रॉड लिगामेंट में रन करके सप्लाई किसको करती है, ओवरी को और फेलोपियन ट्यूब को सप्लाई करती है, ठीक है। वहां पे टेस्टिकुलर सप्लाई करी थी, टेस्टिस और एपिडिडाइमिस में। ओवेरियन आर्टरी ओवरी को और फेलोपियन ट्यूब को सप्लाई करेगी और एंड करती है बाय एनास्टोमोसिंग विद द यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी से एनास्टोमोस करके एंड कर जाती है। कॉमन इलियक आर्टरी पहले ही बता दिया, इट विल एंड एट द लेवल ऑफ एब्डोमिनल ऑर्टा, एंड करता है एट द लेवल ऑफ L4 वर्टिब्री, डाउनवर्ड और लेटरली रन करेगा। और दिस कॉमन इलियक आर्टरी वो कहाँ एंड करती है,
एक्सटर्नल इलियक कहाँ से स्टार्ट होती है? सैक्रोइलियक जॉइंट, पढ़ा है ना? सैक्रोइलियक जॉइंट के लेवल पे ये पेल्विस में आ गई, सैक्रोइलियक जॉइंट के लेवल पे ये आकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक को कहते हैं एक्सटर्नल इलियक, एक को इंटरनल इलियक। एक्सटर्नल इलियक इसका डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है जो कि इंगुइनल लिगामेंट के नीचे से पीछे से पास करेगा और कंटिन्यू हो जाएगा एज अ फेमोरल आर्टरी विच सप्लाइज द लोअर लिम्ब। इंगुइनल आर्टरी पूरी की पूरी अब जब पेरिनियम पढ़ाया जाएगा तो उसके वेसल्स में पढ़ाएंगे, ठीक है? तो दैट विल सप्लाई द पेरिनियम। तो दीज आर ऑल द ब्रांचेस और किस किस लेवल पे निकल रहा है और ये सारी डेरिवेटिव। हाँ, देयर इज अप्लाइड रिलेटेड टू ऑर्टा। ऑर्टा में क्या हो जाता है कि अगर इफ प्लीज यार थोड़ा देर, इतने देर चुप रहे हो, 5-10 मिनट और। इंफीरियर वेना का बहुत छोटा सा है, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद बातें करना, ठीक है? ऑर्टिक एनोरिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी आर्टरी में लोकलाइज डायलेटेशन हो जाए तो दैट इज नोन एज एनोरिज्म। तो अगर ऑर्टा में हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? ऑर्टिक एनोरिज्म होता है, ज्यादातर एल्डरली में मिलता है और जहां से रीनल आर्टरी अराइज कर रही थी ना, रीनल आर्टरी का जो लेवल होता है उसके नीचे ही ज्यादातर देखा गया है। जहां से रीनल आर्टरी अराइज करती है उसके नीचे वाला पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्टा, वहां का लोकलाइज डायलेटेशन हो जाता है, तो दैट इज नोन एज ऑर्टिक एनोरिज्म। ज्यादातर आपको एल्डरली मैन में मिलता है। कॉज क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि वॉल जो होता है वो वीक हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो जिसकी वजह से वहां की आर्टरी का लोकलाइज डायलेटेशन हो जाता है, ठीक है? क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा? सैल्सेटाइल एक्सपेंसाइल एब्डोमिनल मास मिलेगा और वो भी कहाँ मिलेगा? अम्बलाइकस के ऊपर लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा, क्योंकि ऑर्टा कहाँ रन कर रहा है? लेफ्ट में तो रन कर रहा है, तो वहां पे एक स्वेलिंग मिलेगी, तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्टिक एनोरिज्म। सुपीरियर रीनल आर्टरी जहां से अराइज करती है उसके नीचे वाले पोर्शन में एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से वॉल वीक हो गया है, तो जिसकी वजह से वहां पे लोकलाइज डायलेटेशन हो जाता है, ठीक है? और एब्डोम आपको एक एक्सरसाइज लोकलाइज स्वेलिंग मिलेगा अम्बलाइकस के अबव ऑन द लेफ्ट साइड। नाउ द इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्टा and it will drain the blood from whole of the body below the diaphragm into the, कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में जाएगा, है ना? डायफ्राम के बिलो से सारे ब्लड जो ड्रेन करके लाएगा वो कौन सा लाएगा? इंफीरियर वेना कावा, और वो कहाँ चला जाएगा? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में जाके ओपन कर जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इंफीरियर वेना कावा का लेंथ डबल है एब्डोमिनल ऑर्टा से, तो इसका कितना है? 20 to 23 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 2.5 centimeter. This is abdominal aorta. Sorry, inferior vena cava. It is formed by the union of vein है तो नीचे से सेन करके ऊपर जाएगी. It is formed by the union of right and left common iliac vein in front of body of fifth lumbar vertebrae. वो फोर्थ पे खत्म हो गया था, ये थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना? और लेवल भी ऊपर जाएगा. तो एट द लेवल ऑफ फिफ्थ लंबर वर्टिब्री उसके आगे slightly to the right side it will form by the union of right and the left common iliac vein, ठीक है? Then it ascends upwards, ठीक है? And in front of the vertebral column slightly to the right side, ठीक है ना? तो ये जो जहाँ पे एब्डोमिनल ऑर्टा है उसके नीचे, क्योंकि ये L4 पे खत्म हुआ था, ये L5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और जो राइट कॉमन इलियक आर्टरी है उसके पीछे है, एंड देन इट असेंड्स अपवर्ड एंड गोज कहाँ तक जाएगा? ये वेना कावल ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम तक जाएगा, है ना? ठीक है? तो ये जब असेंड करता है अपवर्ड, व्हेन इट असेंड अपवर्ड, तो ये थोड़ा सा मीडियल लाइन के राइट साइड में है, देन इट असेंड्स अपवर्ड, और फिर ये किसके रिलेशन में आएगा? लिवर के पोस्टीरियर से। जब लिवर पढ़ोगे तो on the posterior surface of right lobe of liver there is a groove which lodges the inferior vena cava. So after ascending upward it will it will run through the groove which is present on the posterior surface of right lobe of liver. उसके बाद और ऊपर जाएगा, it will pierces the vena caval opening and फिर उसके बाद वो डायफ्राम के वेना कावल ओपनिंग से ऊपर आएगा, फाइब्रस पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट को पियर्स करके it will open into the right atrium of heart. So this is all about the course of inferior vena cava.
देखो ये लिवर का पोस्टीरियर सरफेस है, यहाँ पे ऐसे ग्रूव होती है, तो नीचे से आ रही है, यहाँ पे आपका लिवर प्रेजेंट है, तो ऑन द पोस्टीरियर सरफेस इट लॉजेस इन दिस ग्रूव, देन इट रन्स अपवर्ड, पासेस थ्रू द वेना कावल ओपनिंग, ऊपर जाएगा, राइट फाइब्रोस पेरिकार्डियम को पियर्स करके राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में ओपन कर जाएगा। These are all the relation present in the anterior surface. आगे में आपको लिवर मिलेगा, राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम मिलेगा, उसमें आपको कंटेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये बाइल डक्ट और ये सारे। देन फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडनम, फिर हेड ऑफ पैनक्रियास, थर्ड पार्ट ऑफ डियोडनम, ठीक है। देन आपको राइट गोनाडल वेसल्स मिलेगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आगे में मिलेगी, और मेसेंट्री ऑफ स्मॉल गट, और पीछे में आपको क्या मिलेगा, वर्टिब्रीज मिलेगी, राइट क्रेस्ट ऑफ डायफ्राम, सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्री, कॉमन इलियक आर्टरी, दीज आर सॉरी कॉमन इलियक नहीं, फिफ्थ लंबर वर्टिब्री, ये सारी, और लंबर आर्टरीज, ये सारी आपको पोस्टीरियर रिलेशन से मिलेगी, इसमें भी वही दिखाया। नाउ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंफीरियर वेना कावा, तो क्या क्या ट्रिब्यूटरीज होगी, ऊपर से देखो, सबसे पहले एंटीरियरली कुछ हेपेटिक वेन्स में ओपन करती है, ठीक है, देन ईदर साइड में इंफीरियर वेनिक वेन, देन राइट सुप्रारीनल, राइट गोनाडल, इसमें याद रखना है कि लेफ्ट सुप्रारीनल, लेफ्ट गोनाडल, लेफ्ट रीनल वेन में ओपन करता है, इंफीरियर वेना कावा में नहीं ओपन करता है, तो उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं होगी, आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, लेफ्ट रीनल वेन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंफीरियर वेना कावा, बट लेफ्ट सुप्रारीनल वेन एंड लेफ्ट गोनाडल वेन, these are the tributaries of left renal vein, but on the right side this right suprarenal, right renal and right gonadal, these all are the tributaries of inferior vena cava, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। देन लंबर वेन हो गया आपका, तो these are all the lumbar veins, और फिर median sacral vein and the right and left common iliac vein, जो कि formative tributaries, so these are all the tributaries of inferior vena cava। अच्छा, if there in especially during the third trimester of pregnancy, uterus जब enlarge करता है तो it will compress the inferior vena cava, so then it will lead to the varicose vein of the lower limb as well as edema of ankle and foot, ठीक है। inferior vena cava अगर बहुत ज़्यादा enlarge uterus है थर्ड trimester of pregnancy में especially, तो क्या करता है, वो पीछे में जो inferior vena cava है उसको कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, इडिमा ऑफ एंकल और फीट होगा और वेरिकोज वेन मिलेगा उस प्रेगनेंसी में ना। बाकी तो आपने पढ़ा ही है कि अगर कभी भी सुपीरियर वेना कावा, थॉरैक्स में भी पढ़ा था आपने इसकी, सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा का किसी भी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, कंप्रेशन हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो क्या डेवलप कर जाता है, केवल शंट डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, केवल शंट रह जाता है, क्योंकि फाइनली ब्लड को तो राइट एट्रियम में पहुंचना ही है, ठीक है ना, तो इट विल डेवलप द केवल शंट, ठीक है। तो इफ देयर इज कंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना कावा ड्यू टू रेट्रोपेरिटोनियल कोई भी ट्यूमर है, तो वो क्या करेगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो वो कंप्रेस करेगा इंफीरियर वेना कावा को, तो इंफीरियर वेना कावा से ब्लड नहीं जाएगा, तो वो क्या होगा, जो केवल एनास्टोमोसिस है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के बीच में, वो एनलार्ज कर जाएगा और ब्लड को ड्रेन करेगा राइट एट्रियम में। तो दिस इज द एनास्टोमोसिस। किसके बीच में एनास्टोमोसिस बनती है, एक्सिलरी वेन की ट्रिब्यूटरी, दैट इज अ लेटरल थोरैसिक वेन, और इंफीरियर वेना कावा से नीचे से कहां से ले आती है, फेमोरल वेन की जो ट्रिब्यूटरी होती है सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक वेन, इन दोनों के बीच में जो एनास्टोमोसिस है, जिसको क्या बोलते हैं, थोरैको एब्डोमिनल वेन कहते हैं, क्या कहते हैं, थोरैको एब्डोमिनल, क्योंकि वहां को इसको कनेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो एनलार्ज हो जाएगा और ब्लड को ड्रेन करके कहाँ ले जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। थैंक यू।